اگر ایک شیطان بادشاہ جنگ کی جگہ کھیتی باڑی کو ترجیح دے تو شیطانوں کی دنیا کا کیا ہوگا؟ کہانی کا آغاز جانگ چیون سے ہوتا ہے، جو کبھی زرعی شعبے کا ایک عام گریجویٹ طالب علم تھا۔ دن با دن اس کا استحصال کیا جاتا تھا اور وہ ایک دم گھونٹنے والی ناانصافی پر مبنی حقیقت میں جی رہا تھا۔ اپنی مایوسی اور کوفت میں جانگ چیون ایک ورڈ سیمولیشن گیم میں جا گرا۔ تاہم غیر متوقع طور پر وہ براہ راست گیم کی دنیا میں کھینچ لیا گیا۔ شیطانوں کی دنیا کا شیطان بادشاہ بن کر دیگر شیطان بادشاہوں کے برعکس جو صرف فتح اور تباہی کو جانتے تھے۔ جانگ چیون جدید دنیا سے زراعت کا علم اپنے ساتھ لایا۔ قدم با قدم اس نے کاشتکاری، کھیتی باڑی اور پیداواری انتظام کے ذریعے بنجر شیطانی دنیا کی اصلاح کی اور صرف مسلسل جنگ کی عادت رکھنے والی شیطانی دنیا میں وافر فصلیں لایا۔ اب آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ شیطان بادشاہ جانگ چیون کے ذریعے شیطانی دنیا کو ایک خوشحال فارم میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ تخت پر بیٹھنے والا شخص کم جانگ چیون ہے، جو پہلے جنوبی کوریا میں صرف ایک عام گریجویٹ طالب علم تھا۔ جانگ چیون سوچا کرتا تھا کہ وہ کم از کم اتنا ہی ہے، کل وہ اچانک اپنی پسندیدہ گیم کا آخری باس شیطان بادشاہ کوریڈوس بن گیا۔ جیسے ہی جانگ چیون پوری کہانی کو یاد کرتا ہے، یہ ایک جانا پہچانا قصہ نکلتا ہے۔ اس گیم بلڈ مون وارگارڈ کا مقصد ایک قدیم سوئے ہوئے ہیرو کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تم جانتے ہو۔ خیر چھوڑیے، یہ سب بتانے سے ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوتا ہے، زیفروس داخل ہوتا ہے اور پکارتا ہے، لارڈ کوریڈوس۔ وہ اسسٹنٹ ہے لیول 15 زیفروس، جو یہ رپورٹ دینے آیا ہے کہ جنگ کی تیاریاں مکمل ہیں۔ باہر جنگ انتہائی شدت کے ساتھ بھڑک رہی ہے۔ باہر قدم رکھتے ہوئے وہ بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، آئیے آج کے اس عظیم حملے کے ساتھ اپنے قحط کا خاتمہ کریں۔ جنگ میں حصہ لینے والا بلڈ پرنس لیول 534 اس وراٹ ہے جو یہ اعلان کرتا ہے۔ آئس ایمپرر لیول 531 سرگی بھی موجود ہے۔ جانگ چیون کی آواز گونجتی ہے، اس بنجر زمین پر پیدا ہونے کا ہمارا المیہ، اپنی ہی جنس کو کھانے کا درد، آئیے ایک ابدی تاریخ رقم کریں۔ فراسٹ ڈیوک لیول 555 ہارلاک غور سے سنتا ہے۔ نعرہ، انسانیت کی لاشیں الفس کو کچل دو، ان سب کو میری خوراک بنا دو۔ اس جنگ میں بلیک راک ٹائرنٹ لیول 539 بارن بھی شامل ہو رہا ہے۔ جانگ چیون صورتحال اور جمع شدہ سپاہیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے، شیطانی فوج سنو۔ جمع ہونے والے لوگ سنجیدگی سے وہاں کھڑے ہیں اور اعلان سن رہے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے، یہ جنگ میں کوریڈوس تمام شیطانوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر اسے روکیں۔ جانگ چیون کی آواز پرعزم ہو جاتی ہے، اب سے ہم۔ بان اپنی آنکھیں سکڑتا ہے اور خاموشی سے سنتا ہے، اس کی نگاہیں یوں جھک جاتی ہیں جیسے آنے والے ہر لفظ کو تول رہی ہوں۔ سرگی بھی خاموش رہتا ہے، اس کی آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں، اعلان کے لمحے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہارلاک ناقابل اندازہ تاثرات کے ساتھ سوچوں میں گم کھڑا ہے، بظاہر یہ توقع کر رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس وراٹ مسکراتا ہے، اس کی آنکھوں میں بے نقاب جوش چمک رہا ہے۔ تاہم جانگ چیون اچانک اعلان کرتا ہے کہ وہ تمام حملے روک دے گا اور کھیتی باڑی شروع کرے گا۔ اس فیصلے پر پورا ہجوم ششدر کھڑا ہے۔ غصے میں آ کر وہ ایک ساتھ چلاتے ہیں، کتنا احمقانہ ہے۔ اگرچہ اندر سے خوفزدہ تھا، شدید ڈرا ہوا تھا، پھر بھی اس نے ایک دھمکی آمیز رویہ اپنایا اور ان پر واپس چلایا۔ پورا ہجوم اس دباؤ سے خوفزدہ ہے۔ جانگ چیون اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ یہ جنگ شروع کرتے ہیں، ایک سسٹم نوٹیفیکیشن ظاہر ہوتا ہے۔ اپنے 20 واں پلے تھرو شروع کر دیا ہے۔ ایک نیا آنے والا تابوت کے اندر سے اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کردار کی معلومات دکھاتا ہے۔ پلیئر ویٹرن کمچی لیول 9990۔ جانگ چیون کو پورا یقین ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ ایک کوریائی یونیورسٹی میں زراعت کے پروگرام میں ریسرچ اسٹوڈنٹ بن گیا تھا، اس امید میں کہ وہ ایک امیر کسان بنے گا۔ اتنا ذہین ہونے کی وجہ سے جانگ چیون جلد ہی شعبے کا ایس بن گیا، ایک سرفہرست گریجویٹ طالب علم بننے کا مطلب تھا۔ نے اس کا استحصال کیا۔ او جانگ چیون، تم بہت ذہین ہو چک، میرے لیے میرا تھیسس لکھ دو، کیا تم لکھو گے؟ اس سے تمہیں بہت مدد ملے گی۔ نے بھی احسانات مانگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس پروجیکٹ میں میری مدد کرو، تم ان کاموں میں بہت اچھے ہو۔ جانگ چیون کو مسلسل حکم دیے جاتے تھے۔ نے حکم دیا، ارے جانگ چیون جاؤ کھیتوں میں ہل چلاؤ۔ تقدیر نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ نمبر 1 غلام بن گیا۔ جانگ چیون اپنے آپ سے بڑبڑایا، میں کیسی زندگی جی رہا ہوں، میں سارا کام کیوں کر رہا ہوں جبکہ تمام کریڈٹ پروفیسرز لے رہے ہیں۔ اپنے غصے میں وہ چیخے بغیر نہ رہ سکا، وہ بدماش، میں ان سب کو مار ڈالوں گا، میں ان میں سے ایک ایک کو مارنے جا رہا ہوں۔ ڈوپمین سے محروم جانگ چیون کو لگا کہ وہ پاگل ہو رہا ہے، اور جانگ چیون کے ڈوپمین کو بڑھانے کا واحد طریقہ گیمز کھیلنا تھا۔ یہ ایک انتہائی مشکل گیم تھی جہاں لیول اپ کرنا بے حد دشوار تھا، ایک بھی پلیئر نے اس گیم کو دوسری بار مکمل نہیں کیا تھا۔ کامیابی کے احساس کا خواہش مند وہ بالکل سوئے بغیر کھیلتا رہا، پہلا رن، دوسرا رن، اور اس طرح جانگ چیون 19 اوور بلڈ مون وارگارڈ کو کلیئر کرنے والا پہلا شخص بن گیا۔ دنیا نے اسے تخیلات میں غرق کر دیا۔ یہ بہت مزیدار ہے۔
मैं दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स हूं। सारी रात गेम खेलते हुए जांग चीवन ने सोचा 20 उपले थरू में इंतहाई दीवानावार दुश्वारी होगी। मुझे कोशिश करने से पहले लेवल अप करने की जरूरत है। मैं लेवल बढ़ाऊंगा, मैं सबसे ताकतवर हूं। स्क्रीन पर करैक्टर इक्विपमेंट का सफा जाहिर होता है। थोड़ा हिम्मत हारते हुए वो सोचता है मैक्स लेवल 9999 है, इसलिए मुझे ग्राइंडिंग बंद कर देनी चाहिए। ऐसा करने में कितने साल लगे? जो भी हो। प्राम्पिट डिस्प्ले को देखकर क्या आप 20वां प्ले थरू शुरू करना चाहते हैं? जांग चीवन खुश होता है, ये लो आ गया 20 ओबार। जैसे ही वो सिलेक्शन बटन पर क्लिक करता है, अपनी शहादत की उंगली नीचे दबाता है। एक अजीब वाकया रूनुमा होता है। स्क्रीन से एक अंधा कर देने वाली रोशनी का धमाका निकलता है। जांग चीवन हैरान रह जाता है, आखिर ये क्या हो रहा है? इसकी रूह स्क्रीन में खींच ली जाती है। सिर्फ एक मुख्तसर लम्हे में जांग चीवन की रूह तकरीबन पूरी तरह गायब हो जाती है। गेम की दुनिया के आसमान में रोशनी की एक किरण नमूदार होती है। इसकी रूह को इस जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जांग चीवन हवास बाख्ता है, ये आखिर क्या मुसीबत है? पुरसुकून हो जाओ, मैं ज़हीन हूं। इसने सूरतेहाल को महसूस किया और उसका मुशाहिदा किया, फिर खुद को तसल्ली दी, ठीक है, मैं अब नीला हूं, जिसका मतलब है कि ये मेरी रूह है। मैं शायद नीचे गिरकर मरूंगा नहीं, है ना? शायद। परवाज की सम्त की तरफ देखते हुए जांग चीवन को एहसास हुआ कि यह हयात का मीनार टावर अब लाइफ था। इसका मतलब था कि वो गेम बिल्ड मून वॉर गार्ड ब्लड मून वॉर गार्ड में दाखिल हो चुका था। जब वो एक मकबरे के पास से गुजरने ही वाला था तो जांग चीवन हवास बाख्ता हो गया, क्या वो ग्रैंड पैलाडिन का मकबरा है? तब जाकर इसे एहसास हुआ कि वो वेटरन किमची के साथ जम हो रहा है, जो तकरीबन मैक्स लेवल का किरदार है। इसकी शानदार और नाकाबिले शिकस्त जिंदगी शुरू होने ही वाली थी। वेटरन कुमची का जिस्म एक ताबूत के अंदर लेटा हुआ था, जिसने एक बहुत ही प्यारी गुलाबी ड्रेस पहन रखी थी। जांग चीवन पछता रहा था, अब पीछे मट कर देखते हुए, मैं वाकई इस चीज में बिल्कुल तब्दील नहीं होना चाहता। शदीद कशिश शक्ल ने इसकी रूह को नीचे की तरफ घसीटा। जांग चीवन चीख उठा, क्या? मैं कहां जा रहा हूं? ये आखिर क्या हो रहा है? क्रीडोस के जिस्म में दाखिल होते वक्त वो तकरीबन मायूसी के आलम में था। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैंने कहा नहीं। फिलहाल जांग चीवन तख्त पर बैठा अपने दर्द करते हुए सर को मिल रहा था, ये चीज मुझे पागल कर रही है। वो खुद को कोस रहा था, अगर वेटरन कुमची को गिरते हुए देखने के बाद मेरे जहन में वो बेवकूफाना ख्याल ना आता तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर किरदार बन चुका होता। मैं कितना अहमक हूं, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। इस वक्त जिफ्रूस राहदारी से गुजर रहा था। इसने बहस सुन ली, क्रीडोस यकीनन कमजोर हो चुका है। कमरे के अंदर से एक आवाज गूंजी, इसीलिए वो डर गया था और उसने हमें अपना हमला रोकने का हुक्म दिया। इसविरात ने उन्हें उकसाया, आइए एक साथ मिलकर उसका सर कलम कर दें। हम तख्त की ताकत का इश्तिराक करेंगे। लेकिन क्रीडोस पिछले शैतान बादशाह का सर कलम करके ही बादशाह बना था। इंस्पेक्शन हार्लाक ने एहतियात से पूछा, क्या हो अगर वो बिल्कुल भी कमजोर ना हुआ हो? हम चारों में से 2 शदीद जख्मी हो जाएंगे, मारे जाएंगे। सुर्गी सरजी ने इसविरात को तजवीज दी, अगर तुम हमारी ढाल बने पर रजामंद हो तो मैं कोशिश करूंगा। वो सदमे में था, क्या तुम पहले मेरे हाथों मरना चाहते हो? बान के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे बहुत भूख लगी है। इसविरात ने एक सवाल उठाया, ठीक है, अगर इस बात का सबूत मिल जाए कि शैतान बादशाह कमजोर हो चुका है तो तब तुम क्या करोगे? उन्होंने एक ही सोच के साथ तंजनीय मुस्कुराहट दी, अगर यह सच है तो हमें इसे मारना ही पड़ेगा। बान अब भी खामोशी से कराहे रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है। बाहर मौजूद जिफ्रूस ने ये तमाम बातें सुन ले। वो अपने ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और रिपोर्ट दी, हमारी फौज का हौसला मुकम्मल तौर पर पस्त हो चुका है। ऐसे वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं जहां सिपाही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और निगल रहे हैं। कुछ लोग तो बगैर बताए शैतानी दुनिया छोड़कर चले गए हैं। चारों आर्च डेमनर्स इंतहाई तैश में हैं। उनका कहना है कि अब कमजोर हो चुके हैं और अब का सर कलम करने के लिए एक साथ मिलने का मंसूबा बना रहे हैं। जांग चीवन ने दिल में सोचा, अगर वो चारों एक साथ हमला कर दें तो मैं यकीनन मारा जाऊंगा। अगर मैंने कमजोरी दिखाई तो भी मारा जाऊंगा। इसे अचानक याद आया, ठहरो, वेटरन कुमची का क्या हुआ? मैं इसके जिस्म पर काबिज क्यों नहीं हुआ? वो तो सिर्फ एक लाश है। क्या सीधा इंसानी दुनिया पर हमला करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जिफ्रूस ने एक क्रिस्टल बॉल उठाया, ये जनरल उमिया की तरफ से भेजी गई ग्रैंड पैलाडिन के मकबरे की रिकॉर्डिंग है। अंदर ये कुमची की वहशियाना कत्लो गारत की तस्वीर दिखा रहा था। मदद की चीखें गूंज, बरा करम रुक जाओ, मुझे बचा लो। दूसरे फरीक ने बेबसी से इल्तिजा की, ठहरो, तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, रुक जाओ। क्रिस्टल बॉल के अंदर से एक दर्दनाक चीख गूंजी, मेरी आंखें, मेरी आंखें। एक खून आलूद मंजर के सामने कुमची का अक्स नमूदार हुआ। इसने बेबसी से अपना माथा पकड़ लिया, वो तरीका काम नहीं करता। ये किसी हवास बाख्ता दीवानी की कारकर्दगी लगती है। मैं इस शख्स से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। मुझे हर कीमत पर यही रहना होगा।
जांग चीवन ने हिसाब लगाया, इस सूरत-ए-हाल में तो मैं एक कमजोर इंसान की तरह लगूंगा, हथियार डालने का इंतखाब करूंगा और चारों आर्च डेमनर्स मुझे मार डालेंगे। अगर मैं इंसानी दुनिया पर हमला करता हूं तो वेटरन कुमची मेरी आंखें निकाल देगा और मुझे फौरी तौर पर मार डालेगा। वो फूट फूट कर उपड़ना चाहता था और तकदीर को कोस रहा था, क्यों मैं इस गेम की दुनिया में क्यों दाखिल हुआ? मैं अब खुशी भी तलाश नहीं कर सकता। जांग चीवन पुरसुकून हुआ और एक हल निकाल लिया, वाहिद रास्ता खुराक का मसला हल करना और शैतानी नस्ल को पुरसुकून करना होगा। इसे जाते देखकर ज़ीफ्रूस ने तजस्सुस से पूछा, लॉर्ड कुरिडोस कब कहाँ जा रहे हैं? इसने जवाब दिया, हाँ, मैं काश्तकारी के लिए कुछ जमीनों का मुआयना करने जा रहा हूं। ऐसा लगा कि इसके पास कहने के लिए कुछ है, वो हिचकिचाते हुए बोल पड़ा, जी हाँ। जांग चीवन ने दूसरे फरीक की गैर मामूली बात को महसूस किया और पूछा, किया? ज़ीफ्रूस ने बेनकाब किया, लॉर्ड कुरिडोस अब खुद पसंद मगरूर हैं और अब में अखलाकियात की शदीद कमी है। फिर भी अपने इतने अदब से जी हाँ कहा। यह खौफनाक और अजीब है। बरा करम ऐसा ना करें। इसने दिल में सोचा, इसे क्या हुआ है? क्या वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है? वो हमेशा इस किस्म का किरदार अदा करता है। ज़ीफ्रूस शैतान बादशाह से जंग से पहले बगैर किसी वजाहत के सिर्फ एक बार नमूदार हुआ था, लेकिन इस चीज ने दरहकीकत इसे एक काफी मकबूल किरदार बना दिया। एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले हुआ। ग्रैंड पीलाडन शैतान बादशाह अब मजीद लड़ना नहीं चाहता। बरा करम वापस लूट जाएं। एक ऐसा किरदार जिसने कभी ज़ीफ्रूस पर हमला किया था। इस वक्त इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था जिसे इस शख्स ने शिकस्त दी थी। अन मालूमात डिस्प्ले हुई। शैतान बादशाह, बरा करम मुझे मुआफ कर दें कि मैं आपकी हिफाजत के लिए बहुत कमजोर था। इसने मजीद सोचा, इसीलिए खिलाड़ी सोचते थे कि वो तो शैतान बादशाह का इंतहाई वफादार है या सच्चे दिल से इसका एहतराम करता है। फिलहाल इसने याद दिलाया, इस बार आपकी गलती की कोई मिसाल नहीं मिलती। मैंने कभी किसी शैतान बादशाह को शैतानी नस्ल का इतना एतमाद खोते हुए नहीं देखा। जांग चीवन काफी उलझन महसूस कर रहा था, वो वाकई बहुत असाब शिकन है। ज़ीफ्रूस ने लिखने के लिए एक नोटबुक निकाली, अब शैतानी नस्ल की जमीन पर काश्तकारी करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी याददाश्त कबूतर की तरह खराब होगी। वो भड़क उठा और डांटा, संजीदगी से, मैं शैतान बादशाह हूं, समझे? अपनी हद पार ना करो। इसने इनकार कर दिया, नहीं मैं जारी रखूंगा। इस जिद्दी रवैये ने जांग चीवन को हैरान कर दिया, वो किसी चीज से डरता क्यों नहीं है? ज़ीफ्रूस ने इसे बाहर की बंजर जमीन की तरफ ले जाते हुए याद दिलाया, पिछले शैतान बादशाहों और अपने खुद भी पहले इस जमीन पर काश्तकारी करने की कोशिश की है ना? इतने सख्त और शदीद दर्जा हरारत के फर्क के साथ अब यकीनन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस जमीन पर कुछ भी नहीं उग सकता है ना? जांग चीवन ने बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूं कि इस जगह को मौत की जमीन, लैंड ऑफ डेथ कहा जाता है, लेकिन वो प्राइतमाद था, मेरी मौजूदा सलाहियत के साथ इस जमीन को दोबारा जिंदा करना मुमकिन है। अपने दिल में इसने सोचा, मुझे खेती बाड़ी से वाकई नफरत है, लेकिन सबसे पहले मुझे जिंदा रहना है। जांग चीवन नीचे झुका और अपने हाथ से मिट्टी की सतह को कुरेदा। फिर इसने मिट्टी की एक मुट्ठी अपने मुंह में डाल ली। ज़ीफ्रूस ने नोट लिखा, शैतान बादशाह वाकई अजीब है। वो एक ऐसे फकीर में बदल गया है जो मिट्टी भी खाता है। वो गुस्से में चीखा, तुम क्या लिख रहे हो? इसे अभी बंद करो। वो क्या है? इसने पुरसुकून होकर जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। शैतान बादशाह की तवारीख को रिकॉर्ड करना एक अहम काम है। शैतान बादशाह की याददाश्त की सलाहियत में यकीनन कमी आई है। जांग चीवन शदीद गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, वो वाकई बहुत असाब शिकन है। असली मसले की तरफ लूटते हुए इसने मिट्टी का वो टुकड़ा बाहर थोक दिया। बहरहाल यहां की मिट्टी में यकीनन ग़िज़ाई अज्जा की कमी है। यहां नाइट्रोजन भी नहीं है। नाइट्रोजन एक ऐसा उनसर है जो पौधों की नशोनुमा के लिए बिल्कुल लाजमी है। अगरचे नाइट्रोजन कुरा हवाई का 78% हिस्सा बनाती है, पौधे इसे अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एटम मजबूत ट्रिपल बॉन्ड से एक साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो कीमियाई रद्दे अमल में मुश्किल से ही हिस्सा लेते हैं। इसलिए इंसानों ने केमिकल इंजीनियरिंग के जरिए नाइट्रोजन फिक्सेशन को तैयार किया, जिसकी वजह से खुराक की पैदावार में तेजी से इजाफा हुआ। यहां ऐसा करना नामुमकिन है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे खेती बाड़ी की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसका मतलब है कि हमें कुदरती नाइट्रोजन फिक्सेशन के तरीकाकार का इस्तेमाल करना होगा। जांग चीवन के जहन में एक ख्याल को निदा, इंतहाई ज्यादा वोल्टेज वाली कड़कती बिजली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। इसके बाद ये बारिश के पानी में मिल जाती है और मिट्टी में जज्ब हो जाती है। और शैतान बादशाह कुरिडोस की दस्तखती तकनीक है। कुरिडोस ने एक बार अपने हाथ से अपने दूसरे बाजू को कुरेदा था। सुर्ख खून के धारे हुआ में उछल पड़े। इसे याद आया कि यह बिजली और नमी दोनों के साथ एक साथ धमाका करता है, जिसे जमीन को जरखेज बनाने के लिए बनाया गया था। सोच खत्म करने के बाद जांग चीवन ने इसे पीछे हटने का हुक्म दिया। अपना दाएं हाथ आगे बढ़ाकर अपने बाईं बाजू को नाखूनों से नोचते हुए इसने खुद की हिम्मत बढ़ाई, चिल्लू खून बहाते हैं। जांग चीवन ने इस लनती दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की। क्या यह सरफिरा शैतान बादशाह हमेशा यही महारत इस्तेमाल करता है?
वो इतना पागल क्यों है? शदीद दर्द हो रहा है। कुछ गैर मामूली महसूस करते हुए वो देखने के लिए पीछे मुड़ा। एक दौर के दरख्त के पीछे चारों आर्च डैमनस छुपे हुए थे, जिनकी एक ही सोच थी। वो कमजोर हो चुका है। अब वो ज्यादा कमजोर है। जांग चीवन ने अचानक एक ऐसी चीख मारी जो पूरे इलाके में गूंज उठी। जिफ्रूस ने अंदाजा लगाया और इसे 100% यकीन था कि वो कमजोर हो चुका है। इस रवैये ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो यकीनन एक कातिल था, जिसका मंसूबा इसे उकसाना और फिर कत्ल करना था। जांग चीवन ने अपने हाथ में मजीद ताकत लगाई क्योंकि ताज़ा खून फवारे की तरह निकल रहा था। ये मरने से तो बेहतर ही है। चिल्लू खून बहाते हैं। इसने अपना बाजू घुमाया हुआ में हर तरफ खून का छिड़काव किया। पीछे खड़े होकर वो हक्का बकारा होकर ये मंजर देख रहा था। जिफ्रूस ने जांग चीवन के हाथ से खून के कतरे जमीन पर गिरते देखे। इसने अपना हाथ पकड़ लिया। दर्द से इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। पीछे मौजूद चारों आर्च डैमनस शैतान बादशाह को रिडोस को सलाम करने के लिए आगे बढ़े। हार्लाक बोला, लॉर्ड, क्या अब ठीक महसूस कर रहे हैं? इस वक्त वो इंतहाई खौफनाक लग रहे थे। इन तमाम को एक साथ करीब आते देखकर जांग चीवन खौफजदा हो गया और दिल में सोचने लगा, अरे बाप रे। कुमची एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा नीचे वादी की तरफ देख रहा था। इसने दिल में सोचा, ये धुंधली सी है, लेकिन मुझे अपनी गुज़िश्ता जिंदगी की कुछ यादें हैं। मैं ये जिंदगी 10 से ज़ायद बार जी चुका हूं। मैं इस जगह की तरफ बढ़ा। मैं इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि इंसाफ की पुकार ने मेरी रहनुमाई की थी, लेकिन वो गायब हो चुकी है। इंसाफ की पुकार अब कुछ नहीं कहती। इसने सोचा, मैं अब किसके लिए जी रहा हूं? ये शख्स वेटरन एनपीसी कुमची था, लेवल 9990। जांग चीवन के सामने कत्ल के इरादे से भरपूर मातहतों का पूरा हुजूम था। माहौल दम घुटने वाला था। इस विराट ने इसे शरीर आंखों और सद मुस्कुराहट के साथ देखा। तुम शैतानों का कानून जानते हो, है ना? जो सबसे ताकतवर है वही शैतान बादशाह है। जांग चीवन ने अपने दांत पेस लिए। इसका चेहरा खौफ छुपाने के लिए बुरी तरह से बिगड़ गया। वो भी डरे हुए हैं। इनमें से हर एक ताकतवर है। मैं इस वक्त एक भी महारत इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या मैं अब मरने वाला हूं? इस विराट के सामने खड़े होकर वो अपना कांपना ना रोक सका। दबाव वाकई हैरान कुन था। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी, फिर भी इसने इतनी ताकत जमा कर ली है कि इसका जिस्म बेकाबू होकर कांप रहा है। इस शख्स ने तहकीर आमेज मुस्कुराहट दी, लेकिन इस विराट ने चैलेंजिंग आवाज में कहा, क्या तुम अपनी मौजूदा हालत में हम चारों को शिकस्त दे सकते हो? गैर मुतवक्के तौर पर जब वो शख्स पीछे मुड़ा तो उसके साथी एक दरख्त के पीछे छप चुके थे। इस विराट एक लम्हे के लिए हक्का बकारा रह गया, उलझन में तेवरी चढ़ाते हुए। ये क्या बकवास है? सब एक दूसरे के करीब जमा होकर वो बोले, हम आपकी जंग देखेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो शामिल होंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। ये खबीस कलमु है। इनमें से एक ने पुरसुकून अंदाज में एतराफ किया, हम शैतान हैं तो जाहिर है हम बुरे ही हैं। जिफ्रूस अचानक जाहिर हुआ स्क्रीन पर एक शदीद जंग का मंजर प्रोजेक्ट करते हुए और सर्द मेहरी से ऐलान किया, शैतानों की देरीना रवायत के मुताबिक दोनों फरीक मौत तक लड़ेंगे। हार मानने का कोई इख्तियार नहीं है। ठहरो, देखो वो कितनी तेजी से हरकत करता है। इस विराट ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और दिफाई पोजीशन ले ली, अपने दिल में मुसलसल खुद को याद दिलाते हुए, मैं ये मैच जीतूंगा। वो कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ जांग चीवन भी घबरा गया और दांत पेस लिए। इसके जहन में एक ही सवाल मुसलसल गूंज रहा था, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इस सूरत-ए-हाल में मैं क्या करूं? इसे याद आया जब इसने पहले अपनी सलाहियत का तजर्बा किया था। अभी अभी मैंने अपनी ताकत की जांच की क्योंकि एक शैतान बादशाह को इंतहाई ताकतवर होना चाहिए, लेकिन मैं इस हद तक ताकतवर नहीं हूं कि नाकाबिल शिकस्त बन सकूं। मैं ताकतवर हूं लेकिन इतनी नहीं कि शेखी बघार सकूं। इससे पहले कि वो अपनी सोच मुकम्मल करता, इस विराट ने आगे बढ़ने का मौका गनीमत जाना, मैं आ रहा हूं। मैंने गेम में पहले भी वो चाल देखी है। ये एक वार आकिट हो सकता है। जांग चीवन ने खौफ से इस शख्स को घूरा, में ऐसी किसी चीज से बच ही नहीं सकता। फिर भी जैसे ही तलवार की नोक इसकी तरफ बढ़ी, इसके जिस्म ने खुद बखुद इससे बचाव कर लिया। जांग चीवन का चेहरा सदमे और उलझन से भर गया। आखिर मैंने इससे बचाव कैसे कर लिया? इसके जहन में इस विराट के मौकिफ की तस्वीर चमकी क्योंकि इसकी अगली टांग आगे की तरफ इशारा कर रही थी, जिसका मतलब था कि वो यकीनन सीधा वार कर रहा था। इस शख्स की हरकत ने जांग चीवन को जामिद कर दिया। वो हरकत बिल्कुल वही है जो गेम में थी। इस विराट थोड़ी दूर आगे फिसला, फिर तवाजुन बहाल करने के लिए जल्दी से अपने हाथ का सहारा लिया। दूसरी तरफ खड़े होकर हार्लाक ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, क्या तुमने इस हमले से बचते वक्त कुर्रिडोस का तासुर देखा? वो जवाबी हमला करने और उसका बाजू उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहा था। इसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? चिल्लू थोड़ा और इंतजार करते हैं और देखते हैं। इस विराट ने रुकने से इनकार कर दिया और दोबारा हमला किया, लेकिन इसने एक बार फिर आसानी से इस वार को बचा लिया। इस शख्स ने तेवरी चढ़ाई। इसके दिल में शक पैदा हुआ, ये क्या हो रहा है? जांग चीवन ने याद किया जो इस शख्स ने पहले दिखाया था। इसकी तमाम हरकत बिल्कुल वही हैं जो मैं पहले से जानता हूं।
इससे पहले का वक्त याद आया जब जांग चीवन लगन से गेम खेल रहा था। पहली बार जब मैं इस विराट से मिला तो मुझे पीछे हटना पड़ा था। मुमकिन नहीं, क्या वाकई इसे शिकस्त दी जा सकती है? वो वसी रेंज के साथ बगैर बताए तेजी से हमले करता है। अंग में इसका कोई भी किरदार इस शख्स के हमलों से नहीं बच सका था। लेकिन एक बार मरने के बाद, मुसलसल तेजी से 3 बार फिर 10 बार शिकस्त खाने के बाद, मैंने बिलाखिर अपनी 1-2-8 कोशिश में इसे शिकस्त दे दी। अगली 19 बार खेलने पर मैं बगैर हमला किए सिर्फ भागकर और बचकर इसे मुकम्मल तौर पर बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। हकीकत की तरफ लूटते हुए इस विराट जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा। जांग चीवन ने पुरसुकून तासुर जाहिर किया, बस इतना ही आसान। ताहम इसके फौरन बाद वो धाड़ा, इसका चेहरा खौफनाक हो गया। इस बात का कोई इम्कान नहीं कि इसके हमले मुझे छू भी सके। जांग चीवन से निकलने वाला दबाव इतना शदीद था कि दरख्त के पीछे छुपे शैतान भी कांपने से ना रह सके। इस विराट ने बार बार अपनी तलवार घुमाई लेकिन एक भी वार उसको छू ना सका। पीछे छुपे हुए तीनों कांपते हुए देख रहे थे। उनका खौफ और बढ़ रहा था। वो खुद लुत्फ अंदोज हो रहा है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। वो इस विराट के इंतहाई कमजोर होने पर हंस रहा है और उसके साथ मजे ले रहा है। इस विराट ने अपने दांत पेस लिए और गाली दी कमीने। जांग चीवन बाल बाल बच गया और अपने दिल में आहिस्ता से हंसा, कितना सुकून मिले। जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे हरा सकता हूं, लेकिन मुझे एक अहम बात का एहसास हुआ। इस दुनिया के भी गेम की तरह कवानीन हैं। कैम गियंग चीवन अपने इस दुनिया के बुनियादी कानून को समझ लिया है। ये वो नोटिफिकेशन बॉक्स है जो मैं आमतौर पर वेबटोन में देखता हूं। नोटिफिकेशन जारी है। आप शदीद तवज्जो के साथ दुश्मन के हमलों से बचने के काबिल भी हो गए हैं। इनाम के तौर पर आपके किरदार का इस्तेमाल करदा गेम सिस्टम का एक हिस्सा अनलॉक कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है, टारगेटनग फंक्शन अनलॉक हो गया। गियंग चीवन इस विराट की तरफ देखने के लिए मुड़ा। अचानक इसकी आंखों के सामने एक मुरब्बा नमूदार हुआ जो बराह रास्त इसे टारगेट के तौर पर लॉक कर रहा था। ये वही टारगेटनग है जो खास महारत जाहिर होने पर इस्तेमाल होती है, जिसका मतलब है बगैर किसी हिचकिचाहट के इसने अपना बाजू सीधा ऊपर उठाया। फिर गियंग चीवन ने इस विराट की तरफ एक सुर्ख धार छोड़ी जिसने पूरे आसमान को सुर्खी से ढांप दिया। बिल्ड स्ट्राइक। इसने एक जबरदस्त आग भड़काई जिसने इसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया। इन लोगों की आंखें खौफ से खिली की खिली रह गईं और वो सामने का मंजर देखकर दंग रह गए। इस विराट नीचे गिर पड़ा। मंजर देखने वाले शयातीन चीखने चलाने के लिए आगे बढ़े। उनके ऊंचे नारे गूंज रहे थे, बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। इसकी नजरें जमीन पर घुटने टेके हुए शख्स पर जिमी हुई थी जब वो कदम बा कदम आगे बढ़ा। इस विराट जमीन पर बैठ गया। जंग के बाद इसका जिस्म ज़ाइल और जख्मी हो चुका था। गियंग चीवन ने मायूसी से दांत पेस लिए। बिल्ड स्ट्राइक लगने के बाद भी वो जिंदा है। इस लनती गेम में पिल भर में मारने वाली चीज। इसके पास रिकवरी का आला निजाम है, इसलिए वो तेजी से ठीक हो सकता है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। रुकने से इनकार करते हुए इसने इस विराट पर बिल्ड स्ट्राइक बरसाना जारी रखा। तीनों अफराद खौफ से कांप उठे। वो इस पर इस हद तक हमला कर रहा है कि वो मरेगा नहीं लेकिन फिर भी दर्द महसूस करेगा। वो शख्स अब जमीन पर सीधा लेटा हुआ था, इसका पूरा जिस्म झुलस चुका था। गियंग चीवन ने बेबसी से सोचा, वो शायद नहीं मरेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने इस विराट के कपड़े फाड़ दिए हैं और अब वो नंगा है। इसने इस पैगाम को उलझन का बाइस पाया। इस पैगाम का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बदकिमाश जाहिर करना बंद कर सकते हो? इंफॉर्मेशन पैनल दोबारा पॉप अप हुआ। एक नया सिस्टम अनलॉक कर दिया गया है। सट्रेपिड आर्मर इन्वेंट्री अनलॉक हो गई। गियंग चीवन ने स्क्रीन को हैरत से देखा। क्या अंदर कोई अच्छा आर्मर है? इन्वेंट्री इसकी आंखों के सामने नमूदार हुई और वो सदमे से बोल उठा, ये क्या बकवास है? यहां सिर्फ वही सीट है जो मैंने पहन रखा है। अभी इस्तेमाल के काबिल कुछ भी नहीं है। सिस्टम की स्क्रीन बंद करते हुए गियंग चीवन ने इस विराट की तरफ देखा। मुझे पहले इससे निमटना होगा। मैं इतना ताकतवर नहीं हूं इसलिए इसे मार नहीं सकता। इसकी रिकवरी की सलाहियत बहुत अच्छी है इसलिए वो जल्द ही दोबारा उठ बैठेगा। वो अचानक रुका। 1 मिनट ठहरो। गियंग चीवन ने इस विराट की तरफ टारगेटनग मोड फाल किया। चूंकि वो अभी तक मरा नहीं है, मैं अब भी इसे टारगेट कर सकता हूं, इसलिए मैं बिल्ड स्ट्राइक के साथ हमला जारी रख सकता हूं। इसने एक खुशगवार मुस्कुराहट दी। मैं इसे ऐसे हमलों का तसलसल दे सकता हूं जो वो हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल सही, मैं सबसे ज्यादा ज़हीन हूं। गियंग चीवन ने दरख्त के पीछे छुपे हुए शैतानी जर्नेलों की तरफ देखा और दिल ही दिल में खुश हुआ। वो लोग मुझसे बहुत डरे हुए होंगे, है ना? बेहतरीन, जरा इसकी आजमाइश करते हैं। इसने सिवगी को आवाज दी। गियंग चीवन ने वापस चीख कर कहा, इस विराट को किसके बांध दो। क्या वो चाहता है कि मैं एक नंगे आदमी को किसके बांधूं? क्या वो मेरी और इस विराट दोनों की तजलील करने की कोशिश कर रहा है? एक लम्हे बाद इस विराट को लकड़ी के सलीब से बांध दिया गया। कदम 1, लाइटनिंग रॉड्स तैयार करें।
वो शख्स बेहोश था, इसकी आंखें सख्ती से बंद थीं। इसविरात अचानक बेदार हुआ, इसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं क्योंकि वो जोर से चलाया। नाकाबिले तस्खीर इसविरात ठीक हो चुका है। तुम यकीनन कमजोर हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बिल्ड स्ट्राइक से मार सकते हो? इस बार मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जैसे ही इसने अपनी बात मुकम्मल की, गियंग चीवन ने अपनी महारत का इस्तेमाल जारी रखा। कदम 2, बिल्ड स्ट्राइक। इसने जल्दी से हिसाब लगाया। इस तरीका से मैं हुआ में मौजूद नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट्स बना सकता हूं। फिर गियंग चीवन मुड़ा और हुक्म दिया, हार्लाक, मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरी जगह को धुंध से ढांप दो। ये इतनी घनी होनी चाहिए कि पानी बहने लगे। हार्लाक के चेहरे के तासुरात खौफनाक हो गए। क्या इसका इरादा इस पूरी जगह को गीला करने का है ताकि इसका लाइटनिंग स्ट्राइक मजीद दर्दनाक हो जाए? कितनी तख्लीकी अजियत देने का तरीका है। आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला। यहां तक सोचते हुए इसने घनी धुंध खारिज करना शुरू कर दी, जिसने हर चीज को ढांप लिया। धुंध ने तेजी से इस विराट को अपनी लपेट में ले लिया। कदम 3, धुंध फैलाएं। इसके बाद गियंग चीवन ने इस पर बिल्ड स्ट्राइक बरसा दिया। कदम 4, मुसलसल हमला। कुछ देर बाद इसने अबरू सुकेड़े और दिल ही दिल में कहा, बहुत दर्द हो रहा है। जिफ्रूस एक कोने में खड़ा पुरसुकून निगाहों से इसके तमाम काम देख रहा था। गियंग चीवन ने हमला करने के लिए बिल्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल जारी रखा, जिससे तीनों अफराद खौफजदा हो गए। इस विराट बेहिस हरकत खड़ा रहा और अकेले ही बिजली की तबाहकुन ताकत को बर्दाश्त करता रहा। वो जितना ज्यादा लड़ता गया, इतना ही जारहाना होता गया। जबरदस्त। इस तरीके से मैं यहां की मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर बना सकता हूं। अगर मेरी बम्पर फसल हो जाए तो क्या बात है। मैं बहुत पुरजोश हूं। गियंग चीवन ने इस विराट पर हमला करने के लिए जुनूनी अंदाज में बिल्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। आवाज हुआ में धमाके से गूंजी, जिसने अर्द गिर्द की हर चीज को हिलाकर रख दिया। इसने मुआयना करने के लिए अपने हाथ में एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। गियंग चीवन बैठ गया और गौर से मुशाहिदा किया। अच्छा, मैं इस तरीके से नाइट्रोजन की फराहमी जारी रखूंगा। अगला मरहला मिट्टी का इस्तेहकाम है। इसने गौर किया। सिंगल ग्रीन साख्त वाली नर्म मिट्टी ऑक्सीजन को बरकरार नहीं रख पाती और पानी की सही निकासी नहीं करती। खेती बाड़ी के लिए एक नर्म दानेदार मिट्टी का ढांचा बेहतरीन होता है। वो आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। इसीलिए अब मुझे जो चीज बनानी है वो है। गियंग चीवन कत्ल के इरादे से भरे चेहरे के साथ वापस मुड़ा। गोबर, तुम सब मुझे अपने कुदाल दो। इसे ये कहते सुनकर सब हैरान रह गए। इन तीनों ने इसकी तरफ देखा और सोचा, इसे लाइटनिंग राड में बदलने और भूनने के बाद वो अभी भी इस पर गोबर मलना चाहता है। ये वाकई बहुत बेरहम है, इंतहाई बेरहम। अगली सुबह सूरज आसमान पर बुलंदी पर था। कुमची जंगल में तफरी के लिए टहल रहा था। अचानक इसने इत्तेफाक से एक रोती हुई आवाज सुनी, बड़ा करम, कोई हमें बचाए। कुमची ने इन झाड़ियों की तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। एक कांपती हुई आवाज इल्तिजा कर रही थी, बड़ा करम, हमें बचा ले। वो आगे बढ़ा और उन दोनों को घूरने लगा। इसने देखा कि 2 आदमी जमीन पर बैठे रो रहे हैं। हम पर गोबलिन्स के एक गिरोह ने हमला किया था। बड़ा करम, हमारी मदद करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको भारी इनाम देंगे। ये सुनकर कुमची करीब आया और झाड़ियों को हटाया। इसके चेहरे पर सख्त तासुरात देखकर डेवन और कासिद सख्त खौफजदा हो गए। कुमची ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्हें न डरने की तसल्ली दी, ये कहते हुए कि वो मशकूक नहीं है। बाकी दोनों अभी भी खौफजदा थे, ये सोचते हुए कि वो इंतहाई मशकूक, हद से ज्यादा मशकूक लग रहा है। इसने पूछा, क्या तुम्हारी टांग में चोट आई है? इससे पहले कि वो जवाब दे पाते, कुमची ने कासिद को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। वो वापस मुड़ा और डेवन से कहा, बड़ा करम, रास्ते की रहनुमाई करें। रास्ते में कासिद ने तजस्सुस से पूछा, आप वाकई बहुत ताकतवर है। मैं इनवाय रवाई उसरहान हूं कासिद। हमारे पीछे आने वाला शख्स मेरा खादिम डेवन फरवंटीरा है। इसने कुमची की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? कुछ सेकंड्स बाद इसने आहिस्ता से कहा, अब से ये वो बात भी है जो मैं तलाश करना चाहता हूं। मंजर एक शानदार किले की तरफ मुंतकिल होता है। किले के अंदर 3 शैतानी बादशाह एक मीटिंग रूम में बैठे थे। हार्लाक ने अपनी ठोड़ी अपने हाथ पर टका दी और संजीदा चेहरे के साथ कहा, हम इस तरह गोबर कैसे ला सकते हैं? क्या हम मौके पर ही रफ हाजत करें आ क्या? सिवगी ने दांत पेश कर गाली दी, ये हमाकत है, वाकई गेनुना और खौफनाक। बांतों ने लापरवाही से कहा, बांतों ने काफी अरसे से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं पाखाना नहीं कर सकता। सिवगी का भी यही हाल है। अहमक, मेरे गोबर के बारे में बात मत करो। हार्लाक ने एक सख्त फैसला लिया, अगर हम पाखाना कर भी सकते तब भी मैं इसे अपना गोबर नहीं देना चाहता था। चिल्लू छोटे दर्जे के शयातीन को मारते हैं और उन्हें पाखाना करने पर मजबूर करते हैं। शयातीन के गांव में रहम की चीखें गूंज उठी, बड़ा करम, ऐसा ना करें जनाब, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं। वोड ने बैतुल-खला इस्तेमाल करते हुए चीख कर कहा, अगर हर कोई इस तरह देख रहा है तो मैं पाखाना नहीं कर सकता।
बड़ा करम कम अज कम बाहर इंतजार करें। पैंग ने सूरतेहाल देखी और बोला, दूसरों ने भी यही कहा, लेकिन वो पाखाना नहीं कर सकते। इतना वक्त क्यों लग रहा है? हार्लाक करीब आया और नरमी से पूछा, तो तुम चाहे कुछ भी हो हमारे लिए गोबर मुहैया नहीं कर सकते? लॉर्ड हार्लाक, मैंने काफी अरसे से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं पाखाना नहीं कर सकता। इससे पहले कि इल्तिजा खत्म होती हार्लाक ने वोड को गर्दन से पकड़ लिया। इसने इसे खत्म करने के लिए अपने पंजे उठाए। शुक्रिया, मैं समझ गया। हार्लाक ने अपने पंजे ऊंचे उठाए जिनसे मोहलिक जहर टपक रहा था। इसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। खुशकिस्मती से बांतों ने इसे रोकने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। हार्लाक ने घोर कर उसकी तरफ देखा। क्या बात है? बांतों ने वजाहत की, इसका पेट फाड़ने से वो मर जाएगा। इसका मतलब है कि गोबर नहीं मिलेगा। उन्हें मजीद पाखाना करने की जरूरत है ताकि हम मजीद हासिल कर सकें। इसे मजबूरना इसे छोड़ना पड़ा। ये तो काफी अक्लमंदाना बात है। मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। हार्लाक ने एक खौफनाक चेहरा बनाया। अगर मैं उन्हें तुम्हारा गोश्त खिलाऊं तो शायद वो इसे हजम कर सके। बांतों भी पीछे हटने वाला नहीं था और उसने बदले में इसे सीधा घूरा। दोनों ने एक खौफनाक हाला खारिज किया जिससे वोड खौफ से कांपने और लरजने लगा। कोई भी पीछे न हटा, दोनों लड़ने के लिए आगे बढ़े। गियन चीवन ने उन्हें रोकने के लिए मुदाखलत की। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? इसकी एक ही चाल ने दोनों को जमीन पर चित कर दिया। सिर्फ इंसान ही इखराज करने वाली मखलूक नहीं है। कले में वापस गियन चीवन तख्त पर बैठा और आहिस्ता आहिस्ता सबको समझाने लगा, ग़िज़ाई अज्जा के बगैर गोबर बेकार है। तुम्हें ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर गोबर तलाश करना होगा। ज़िफ्रूस करीब ही खड़ा था और उसने उलझन में पूछा, गोबर? बिल्कुल, मिट्टी को ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने का ईंधन। आमतौर पर गोबर लकड़ी के बारूदे, घास, मिट्टी, अंडे के छिलकों और मुर्गियों के फुजले से बनता है। जहां तक लकड़ी और घास का ताल्लुक है, हम इन मकानात का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पहले देखे थे। मसला अंडे के छिलकों और मुर्गियों के फुजले का है। गियन चीवन को अचानक कुछ याद आया। वो इसकी तरफ मुड़ा और हुक्म दिया, ज़िफ्रूस, मुझे हमारी सल्तनत का नक्शा लाकर दो। जी आलीजा। नक्शा मेज पर फैला दिया गया। गियन चीवन ने नक्शे की तरफ देखा और दिल में सोचा, जैसा कि तवक्को थी, ये गेम के नक्शे जैसा ही है। जिसका मतलब है कि मैं इस जगह पहुंचकर उन्हें तलाश कर सकता हूं। वो जगह जहां शैतानी समंदरी बगलों की रहाइश है। इसने याद किया, जब वो गेम खेलता था, गेम में वो बहुत बड़ी तादाद में जाहिर होते थे। इसका मतलब है कि समंदरी बगले इंसानी इलाकों से बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा हज़म कर सकते हैं। और जब वो वहां पाखाना करते हैं और अंडे देते हैं तो ये एक शानदार जगह बन जाएगी। ज़िफ्रूस ने इसकी तरफ देखा और लापरवाही से पूछा, आलीजा, क्या अब समंदरी बगलों का फुजला जमा करने का मंसूबा बना रहे हैं? आप काफी तेजी से समझ गए। इसने वजाहत जारी रखी, इस जगह को नॉन रिटर्न कलफ लापता चट्टान कहा जाता है। वहां पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप गिर गए तो आप तेज लहरों में फंस जाएंगे। इसने एक मामूली सा जवाब दिया। गियन चीवन पहले ही ये जानता था, क्योंकि गेम में खिलाड़ियों को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। इसने अज़्म से भरे चेहरे के साथ कहा, लेकिन मैं वहां ऊपर चढ़ सकता हूं। मंजर गाल आइलैंड बगलों का जजीरा की तरफ मुंतकिल होता है। इसके अफाल ने हार्लाक को उलझन में डाल दिया। वो आखिर सोच किया रहा है। कदीम जमाने से बहुत से लोगों ने उन बगलों को पकड़ने के लिए खुद को चैलेंज करने की कोशिश की है, लेकिन वो सब समंदर में गिर कर मर गए। गियन चीवन वापस मुड़ा और कहा, मैं ऊपर चढ़कर फुजले और अंडों से भरे बोरे नीचे फेंकूंगा। यकीनी बनाना कि तुम उन्हें पकड़ लो। इसके होठों पर एक खूंखार मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो हर किसी को अच्छा खाने को मिलेगा। ये सुनकर बांतों ने अपनी भनवें सुकेड़ी और उसकी तरफ देखा। इसके ज़हन में इसे बेइख्तियार हार्लाक की तस्वीर याद आई, जिसने वोड को गर्दन से पकड़ा हुआ था। इसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। भूख ने इन शयातीन को सिर्फ हड्डियों के ढांचे के सिवा कुछ नहीं छोड़ा था। गियन चीवन आहिस्ता आहिस्ता तेज लहरों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। इसने दिल ही दिल में सोचा, गेम के बाद से यहां ऊपर चढ़ने की ये कौन सी कोशिश है? मैंने इस वक्त इस चट्टान पर चढ़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी,